नमस्कार मुद्रा. Shoulder, neck, chest, elbow. Single breathe normal. Breathe in. Breathe out. Single omkar. Breathe in. प्रार्थना. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ऊर्जा ने आंखों पर फेर कर क्राउन पर धीरे से आपको नॉर्मल बनने नी पर नेक मूवमेंट श्वास पर नेक अप स्पाइन सीधी शोल्डर ही पेट लाइन नेक डाउन breathing neck up breathe out neck down breathing neck center breathe out right side turn twist कर पर शोल्डर हल्का breathing neck center breathe out opposite side breathing neck center repeat breathe out right side twist breathing neck center breathe out opposite breathing neck center breathe out right side bend left shoulder एकदम हल्का breathing neck center breathe out opposite side bend repeat breathing breathe out breathing breathe out and relax. માંજર પોઝ આવી જાઓ. ફર્સ્ટ ડીલ જે નોર્મલ છે એકદમ જ્યારે એકદમ શરૂઆત કરતી હોય ને ત્યારે સ્પાઇન શોલ્ડર નેક હલકું રાખીને પોસિબલ એટલું હાથની હથેળી પર પુશ કરીને વેક શ્વાસ ભર નેક ચેસ્ટ અપ શ્વાસ છોડ શોલ્ડર રાઉન્ડ shoulder round core engage in पंजा flex બંને पंजा flex and 5% जमीन की नी उठाओ and shoulder ने angry mechanism round run and normal breathing उंगलियां spread हथेली press पेट हल्को अंदर and normal breathing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 knee down same posture परिवार श्वास भर नेक चेस्ट लॉक अप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर श्वास छोड़ शोल्डर राउंड पंजा फ्लेक्स हाथनी हथेली आंगळીઓ સ્પ્રેડ કરીને જમીન પર પ્રેસ કર ની હલકા જમીનથી અપ કર હવે રાઈટ લેગ ને સ્ટ્રેટ કર પાછળની તરફ લેફ્ટ લેગ હલકો જમીનથી ઉપર એન્ડ હોલ્ડ 1 રાઈટ લેગ સ્ટ્રોંગ 2 3 4 5 6 જમીનથી ની ટચ નહીં કરીશ એન્ડ લેફ્ટ લેગ સ્ટ્રેટ એન્ડ હોલ્ડ मांजर पोज नॉट माउंटेन होल्ड 1 पेट हल्को अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax normal breathing हाथ हल्का श्वास भर नेक चेस्ट अप श्वास छोड़ शोल्डर राउंड and slowly high plank normal breathing core engage shoulder round right knee right elbow पर touch left knee left elbow पर alternate कर पर core engage tailbone tuck and start 1 toes point right leg right elbow and back left leg left elbow and back core engage right leg right elbow and back left leg left elbow and back continue 5 toes point and back 6 and back 7
and back. 8, back. 9, back. 10, back. 11, back. 12, back. 13, core engage, back. 14, back. 15, back. 16, back. 17, back. 18, toes point, back. 19, back. Last 20, and back. Vajrasana. Normal breathing, neck, shoulder, hip, spine, सीधी. 1. हार्टबीट पर ध्यान, नेवल एनर्जी पर. 2. 3. ફરી માંજર પોઝ. જેટલી આંગળીઓને સ્પ્રેડ રાખીશ એટલું હાથને વધારે સારી રીતે પુશ કરી શકીશ. જેટલું હાથને વધારે પ્રેસ કરીશ શોલ્ડર પર પેઇન ઓછું આવશે, કોર એન્ગેજ કરવામાં હેલ્પ કરશે. પંજા ફ્લેક્સ. શ્વાસ ભર, નેક ચેસ્ટ અપ, શ્વાસ છોડ, શોલ્ડર રાઉન્ડ, પેટ હલકું અંદર, એન્ડ હાઈ પ્લાન્ક. કોર એન્ગેજ. Toes point, right knee, left elbow. Start. 1 and back. 2, hip movement leg and back. 3 and back. Continue. 4 and back. 5 and back. 6 and back. 7 back. 8 back. 9 back. 10 back. 11 back. 12 lower back. 13 back. Back. 14 back. 15 pit and then back. 16 back. 17 back. 18 back. 19 back. Last 20 and back. Vajrasana. Normal breathing, neck, shoulder, dildo, spine, seated. 1. आंख बंद. पूरा ध्यान शोल्डर रिलैक्स कर, चेस्ट पर हाथ भी फील कर. 2. नेवल मूवमेंट पर ध्यान. 3. 4. 5. फरी मांजर पोज. श्वास भरी, नेक चेस्ट अप, श्वास छोड़ी, माउंटेन पोज. 6 राउंड मांजर माउंटेन, मांजर माउंटेन. પછી માઉન્ટેન માં હોલ્ડ. લાસ્ટ ટાઈમ માઉન્ટેન પોઝિશન માં હોલ્ડ. શ્વાસ ભર, નેક ચેસ્ટ અપ, બ્રીથ આઉટ. માઉન્ટેન હીલ પ્રેસ, હિપ ને છતની તરફ ઉપર ખીંચ. બ્રીથિંગ मांजर, નેક ચેસ્ટ અપ, બ્રીથ આઉટ. પેટ અંદર ખીંચते हील प्रेस. બ્રીથિંગ, નેક ચેસ્ટ અપ, breathe out. Mountain. 4. Breathe in. Breathe out. Mountain. Heel press. 5. Other round. Chest lift kar. Breathe out. Mountain. Last. Breathe in. Neck chest up. Breathe out. Heel press. टेम्पो छत की तरफ ऊपर खींचो. एंड नॉर्मल ब्रीदिंग 3 टाइम्स. 1. ब्रीथ आउट. 2. ब्रीथ आउट. 3. ब्रीथ आउट. हिप टिल्ट किए बगैर राइट लेग ऊपर की तरफ टोस पॉइंट करके उठाएं. अब लेफ्ट लेग को स्ट्रांगली जमीन पे प्रेस करो एंड राइट लेग को लेफ्ट एल्बो, राइट नी को लेफ्ट एल्बो पे टच करो. डाउन. 1. सेम. Right leg up. Breathe out. Core engage. Right leg up. Breathe out. Core engage. And go straight. 4. Continue 15 times. Breathe out. 5. Breathe out. 6. Breathe out. Shoulder round रहेगा पूरे पोर्शन में. 6. Breathe out. 7. Breathe out. 8. Breathe out. 9. Breathe out. 10. Breathe out. 11.
breathe out. 12, breathe out. 13, breathe out. 14, breathe out. Last 15, breathe out and hold. Left leg strong. Right knee, left elbow. Center पे ध्यान. Normal breathing. Right toes point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and mountain. Normal breathing. अगर लगता है शोल्डर को रिलैक्स करना है, 3 श्वास के लिए वज्रासन आ जाए. आंखें बंद. चेस्ट मसल्स को हल्का छोड़ो. नेक हल्का. स्पाइन सीधा. श्वास धीरे भरो. धीरे छोड़ो. 1, 2, 3, फिर से सेम पोस्चर. मांजर. पंजा फ्लेक्स. श्वास भरो. नेक चेस्ट लिफ्ट करो. ब्रीथ आउट. हील प्रेस करके माउंटेन. नी जमीन से लिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ. टेलबोन छत की तरफ ऊपर खींचो. पैरों में हल्का फासला. एंड स्टार्ट. लेफ्ट अप. ब्रीथिंग. श्वास छोड़ो. कोर एंगेज. अपोजिट एल्बो पे टच. ब्रीथ आउट. टोस पॉइंट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. 2, breathe out. 3, left leg strong. Breathe out. 4, breathe out. 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, breathe out. 10, breathe out. 11, breathe out. 12, breathe out. 13, breathe out. 14, breathe out. 15, and breathe out. Core engage. पीछे वाला leg strong. Right leg को अच्छे से strong रखो. दोनों हाथों के बीच में ध्यान. 1, neck को हल्का रखो. 2, shoulder को round रखो. 3, 4, breathing normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mountain. फिर से वज्रासन. आंखें बंद. शोल्डर नेक हल्का. स्पाइन सीधा. श्वास धीरे भरो. धीरे छोड़ो. हाथ पे ध्यान. नेवल एनर्जी पे ध्यान. फेस मसल हल्का. 1, 2, 3, फिर इसे दोनों पैरों में आसन में फासला. पंजा फ्लैट रहेगा. इन हल्का अंदर की तरफ. पंजा बाहर की तरफ. दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल. फॉरहेड जमीन पे टच. नी उठाना नहीं है बट नेवल तक उठने की कोशिश करना है. स्पाइन से नहीं उठना है. हाथों को अच्छे से प्रेस करके आर्मपिट पे स्ट्रेच देना. जो भी आपका स्ट्रेंथ यूज होगा. शोल्डर का आर्मपिट का स्ट्रेंथ यूज होगा. स्पाइन से आपको एनर्जी नहीं देना. स्पाइन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा. जो भी आप स्ट्रेस दे रहे हो, सॉरी स्ट्रेंथ ले रहे हो, हाथों की हथेलियों को पुश करके लोगे. ठीक. तो स्पाइन अपने आप से मूवमेंट कर रहा है लेकिन आप स्पाइन को उठा के पीछे नहीं जाओगे. नेवल तक उठो. स्टार्ट. ब्रीदिंग. फ्लोर पे ध्यान. ब्रीथ आउट. एल्बो अंदर की तरफ. ब्रीदिंग. ब्रीथ आउट. बैकवर्ड बेंड नहीं करना. ब्रीदिंग. ब्रीथ आउट. हो सके इतना आर्मपिट पे स्ट्रेच. 3, ब्रीथ आउट. 15 टाइम. 4, ब्लो कर सकते हो. ब्रीथ आउट. एल्बो को अंदर की तरफ रखो. 5, ब्रीथ आउट. 6, ब्रीथ आउट. नेवल तक उठो. 7, ब्रीथ आउट. 8, नेक लॉक नहीं करोगे. ब्रीथ आउट. 9, हाथों की हथेली को पुश करो. ब्रीथ आउट. अच्छे से प्रेस करोगे. स्पाइन पे बिल्कुल नहीं जाएगा. ब्रीथ आउट. 10, ब्रीथ आउट. 5 और. 1, ब्रीथ आउट. 2, breathe out.
3, breathe out. 4, breathe out. Last 5, and breathe out. मकरासन. नॉर्मल ब्रीदिंग 2 राउंड और करेंगे. श्वास धीरे भरो, धीरे छोड़ो. कहीं पे भी नेक पे लॉक नहीं करना. स्पाइन को ज्यादा बैक बेंड नहीं करना. आपको बैक बेंडिंग वाला पोस्चर बिल्कुल नहीं उठाना. भुजंगासन पुशअप करना है. तो पुशअप जब करते हो तो हाथों की हथेली को अच्छे से प्रेस करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करो. सेकेंड राउंड. दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल. बिल्कुल भी एल्बो बाहर की तरफ नहीं रहेगा. हो सके इतना आपके कमर के आसपास अंदर की तरफ. दोनों पंजा फ्लैट. एंड स्टार्ट. ब्रीदिंग. प्रेस करो हाथों की हथेली को. ब्रीथ आउट. बहुत ज्यादा नहीं उठना. 2, फ्लोर पे ध्यान. ब्रीथ आउट. 3, ब्रीथ आउट. 4, ब्रीथ आउट. 5, ब्रीथ आउट. शोल्डर हल्का रखिए. 6, ब्रीथ आउट. 7, आपकी रिस्ट पे, आपकी आर्मपिट पे स्ट्रेच चाहिए. शोल्डर पे या नेक पे नहीं. ब्रीथ आउट. 8, breathe out. 9, breathe out. 10, breathe out. 11, breathe out. 12, breathe out. 13, breathe out. 14, breathe out. 15 पे होल्ड. अप एंड होल्ड. हाथों की उंगलियों स्प्रेड करो एंड होल्ड करो. 1, नेक हल्का. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. And मकरासन. नॉर्मल ब्रीदिंग. श्वास धीरे भरो, धीरे छोड़ो. हार्ट बीट पे ध्यान. नेवल के आसपास सोलर एनर्जी पे ध्यान. 1, फेस मसल हल्का. 2, 3, same position. Last, same position, same breath, and last. उंगलियां अच्छे से स्प्रेड करो. हाथ की हथेली को अच्छे से प्रेस करो. एंड स्टार्ट. नोस्ट्रिल या फॉरहेड जमीन पे टच. स्पाइन को यूज किए बगैर हाथों को प्रेस करके ऊपर की तरफ उठो. अगर आपका हाथ जमीन पे नहीं भी है तभी भी आप बैक बेंड वाला पोस्चर नहीं करना. तो शोल्डर पे ज्यादा. हम बैक बेंड में क्या करते हैं, हाथ जमीन पे नहीं रखते लेकिन हम स्पाइन को अप एंड डाउन करते हैं. यहाँ पे अगर आपका हाथ जमीन पे नहीं है तो उठ ही नहीं पाओ. इस तरह से आपको पोस्चर लेना है कि पूरी जो स्ट्रेंथ है आर्मपिट पे, कलाई पे, एल्बो के आसपास, शोल्डर पे. लेकिन शोल्डर को ज्यादा लॉक नहीं करना. लास्ट राउंड. स्टार्ट. ब्रीदिंग. उंगलियां स्प्रेड एंड हाथों को प्रेस करो. ब्रीथ आउट. 2, ब्रीथ आउट. 3, continue. Breathe out. 4, breathe out. स्पाइन को बिल्कुल यूज नहीं करना. Breathe out. 6, अर्चना थोड़ा कम उठना. Breathe out. हाफ एल्बो बेंड रहेगा. 5, बस. Breathe out. 6, breathe out. Perfect. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, breathe out. उंगलियां स्प्रेड करो. 10, breathe out. 11, breathe out. 12, breathe out. 13, breathe out. 14, breathe out. 15 पे होल्ड. हाफ एल्बो बैंड. नेक हल्का, शोल्डर हल्का. नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, फ्लोर पे ध्यान. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मकरासन. नॉर्मल ब्रीदिंग. धीरे भरो, धीरे छोड़ो. नॉर्मल श्वासों के साथ आपकी हार्ट बीट पे ध्यान. आपके नेवल के आसपास सोलर एनर्जी पे ध्यान. नेक, शोल्डर, स्पाइन बिल्कुल ढीला, हल्का. लाइट एनर्जी का वेव फील करो. हाथों में कहीं पे भी ज्यादा स्ट्रेच आए तो वहां पे एनर्जी का वेव पास होते हुए फील करो. ऑटोमेटिक वो हल्कापन दिखेगा. नॉर्मल सांसों को जहाँ पे भी पेन है या स्पाज्म जैसा फील हो, स्ट्रेचिंग जैसा फील हो, वहां से एनर्जी को पास होता हुआ फील करो. एंड स्टेडी टेक ले जाओ.
सीधी पीठ लेट जाए, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, दोनों पैर जॉइन। सबसे पहले टोस पॉइंट करो अच्छे से, पेट हल्का अंदर, श्वास भरो, आपकी चेस्ट से लिफ्ट करना है, नेक को खींच के ऊपर की तरफ नहीं आना, हाथों को स्लाइड करो नी की तरफ एंड चेस्ट को लिफ्ट करो, हल्का सा कोर एंगेज करो, नेक को लॉक किया बगैर या तो छत को देखो या तो हल्का सा नेक पीछे रखो, बट चेस्ट से ऊपर उठने की कोशिश करो एंड धीरे से टोस पॉइंट करते हुए लेग अप एंड 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड। समझ आया? लेग डाउन। साथ में स्टार्ट करते हैं, दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर, ब्रीदिंग, चेस्ट से उठे, टोस पॉइंट, breathe out, leg up and hold. 1, neck lock नहीं करोगी, 2, 3, फिर भी लगे नेक पे जा रहा है तो हाथों को फोल्ड कर देना नेक के पीछे, 5, 4 एंगेज, 6, 7, 8, हाथ थाइस पे अनिता, 8, 9, 10, 11, 12, लो करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, slow down, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे भरे धीरे छोड़े, शोल्डर नेक हल्का। अगर आपको लगता है कहीं पे भी नेक पे जा रहा है तो नेक पे उठाना ठीक लगे दिखाओ। अगर आपको लगता है कि हल्का नेक के पीछे सपोर्ट देने से भी काम बन जाएगा तो सपोर्ट दे दो। फिर भी लगे नेक पेन है तो नेक जमीन पे ड्रॉप करके सिर्फ लेग लिफ्ट करो। अगर लगता है लेग लिफ्ट करने में आपको कमर पे जा रहा है, स्पाइन पे जा रहा है तो हाथों को हिप्स के नीचे ले लेना, लेकिन कोशिश करो 2 राउंड और कंटिन्यू करेंगे, लास्ट राउंड में 30 सेकंड करेंगे, दोनों थाइस पे श्वास भरो, चेस्ट लिफ्ट करो, पेट हल्का अंदर, टोस पॉइंट, ब्रीथ आउट एंड लेग लिफ्ट करो 30 डिग्री एंड होल्ड, शोल्डर हल्का, 1, 2, 3, 4 एंगेज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, slow down, leg straight and leg down, पूरा शरीर हल्का, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास धीरे भरो धीरे छोड़ो, डन, 1, down, 2, down, 3, down, लास्ट राउंड, 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश। अगर आपको लगता है नेक के पीछे आपके दोनों हाथ इंटरलॉक करके रखना है, रख सकते हो, लेकिन नेक खींच के आगे नहीं लाना, दोनों हाथ थाइस पे, टोस पॉइंट, श्वास भरो, शोल्डर से उठने की कोशिश करो, ब्रीदिंग, पेट हल्का अंदर एंड लेग लिफ्ट करो, ब्रीथ आउट एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड, 1, हाथों को नी की तरफ स्लाइड करो, 2, हाथ अपने थाइस पे रख दो अनीता, शोल्डर पेन आएगा, 4, 5, 6, अभी शोल्डर हल्का छोड़ दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and let go. टेलबोन जमीन पे प्रेस एंड दोनों पैरों को मोड़ के घुटने को चेस्ट की तरफ प्रेस करो, 1, 2, 3, हल्का सा अपने आप को रोल करके ऊपर की तरफ ले आओ और फिर से पेट के बल लेट जाओ। लेग जॉइंट, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल, यहाँ पे एक बार देख लो, फिर कंटिन्यू आपको करना है 6 राउंड, दोनों पैर फ्लेक्स, पंजा फ्लेक्स रहेगा, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल जाएंगे, श्वास भरते आपके नी एंड थाइस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, आपका टोस फ्लेक्स है बट आपको नी एंड थाइस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और हाथों की हथेली को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ उठना है। चतुरंगा जैसे हम जाते हैं तो हाई प्लैंक में किस तरह से आते हैं, तो पूरी स्पाइन को यूज किए बगैर शोल्डर स्टैंड को यूज करना और वापस आओगे तो चतुरंगा से नीचे आना, फिर धीरे से चेस्ट से नी को जमीन पे ड्रॉप कर देना, फिर से सेम पोस्चर, टोस फ्लेक्स होगा,
आपके नी एंड थाइस को ऊपर की तरफ उठाना, अच्छे से आपकी हाथों की हथेली को जमीन पे प्रेस करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना, हाई प्लांक, शोल्डर राउंड, 3 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे चतुरंग आना एंड डाउन, लेग्स हल्का, समझ आया? तो 6 राउंड कंटिन्यू करोगे, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल। हेलो, मैं बाद में बोलती हूँ आपको तब रखो। नी एंड थाइस को उठा लो, पंजा फ्लेक्स, हाथों को प्रेस करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, अपर स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ उठाओ, अप एंड हाई प्लांक, हाई प्लांक, हाई प्लांक, शोल्डर राउंड, वेरी गुड, 1 और अनिता जरा लिफ्ट, 2 3, अभी चतुरंगा जाना है, कोर एंगेज, एल्बम टक डाउन एंड रिलैक्स नीचे, चतुरंगा में 3 सेकेंड होल्ड, हाई प्लांक में 3 सेकेंड होल्ड, प्रॉपर पोस्चर जब लगे आपने ले लिया तो 3 to 4 सेकेंड रोको अपने आप को। सेकेंड राउंड, नी एंड थाइस को पहले उठाओ, टोस फ्लेक्स, अभी स्पाइन को कर्व किए बगैर सीधा अपर स्पाइन को ऊपर उठाओ, अप, हाथों को ज्यादा से ज्यादा पुश करो, पुश अप 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 अप, वेरी गुड एंड होल्ड, और जरा सा हिप थाई अप, 1 अनिता, 2 हिप अप, 3 हिप अप, यस एंड चतुरंग, कोर एंगेज, एल्बो फोल्ड, धड़ाम नहीं एंड रिलैक्स, गुड अर्चना। अनिता बहुत स्लो, कोर कंट्रोल करो, चतुरंगा में 3 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करो, आपका पोस्चर मुझे ऐसे चाहिए, आपका योगा मैट घुमा सके तो घुमा दो, स्लीपिंग लाइन जैसे अर्चना का है, तो आपका ना कोर पता चले, थाइस पता चले, आप नी स्ट्रेंथ कितनी ले रहे हो, आपको खुद को भी दिखे, मुझे भी दिखे, थोड़ा पीछे ले लो सोफे की साइड, यस चले, थर्ड राउंड, चेस्ट के अगल बगल दोनों हाथ, 4 राउंड और करेंगे, पंजा फ्लैक्स, नी एंड थाइस को अच्छे से लिफ्ट करो पहले, फिर हाथों को पुश करो एंड अप, अपर स्पाइन को अच्छे से यूज करो, और अनिता भुजंग पोस्चर ही है, और ऊपर शोल्डर राउंड, कैट पोज जैसा शोल्डर राउंड, और अनिता होल्ड, 1 2 और जरा सा, 3 4, अर्चना आप जाओ, अनिता आपका ना भुजंग पोस्चर ही है, मुझे वो सामने ऐसे ही लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसे करवाया, आपको ना पोस्चर मैं आपका दिखाऊं, आपका पोस्चर ये, कितना भी करो आपका शोल्डर ऊपर है, तो मुझे आपका शोल्डर राउंड चाहिए, समझे, लाइक ये हिप ऐसे नहीं चाहिए, हो सके इतना शोल्डर राउंड एंड कोर एंगेज, तो आपका शोल्डर पेन भी जाएगा और ऑटोमेटिक कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। 3 राउंड और खुद से करो, अच्छा कंप्लीट करो खुद से, 3 राउंड और ईमानदारी से कोशिश करो, जितना शोल्डर एंग्री कैट जैसा आप ऊपर की तरफ खींचोगे, यस करो, और ऊपर, और जरा सा, पेट हल्का अंदर, पेट हल्का अंदर एंड होल्ड, 1 2 3, चतुरंगा, स्लो आना, एल्बो फोल्ड, कोर को कंट्रोल करो, कोर कंट्रोल करो एंड रिलैक्स, और 2 राउंड होगा। अनिल आप ये ट्राई करना इस बार, नी जमीन पे रखो, नी जमीन पे रख के ऐसे जाओ और उसी पोस्चर में वापस, तो नी का सपोर्ट है, ऑटोमेटिक आपका स्पाइन कर्व नहीं होगा। अर्चना आपका सही जा रहा है, तो आप 2 राउंड ऐसे कंप्लीट करो, आप अनिता नी जमीन पे रख लो, ठीक, आपकी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेट रखो, कोर एंगेज रखो एंड आपकी एल्बो को फोल्ड करो, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, कर्व नहीं होगी, ठीक, इस तरह से नहीं जाओगी, इस तरह से नहीं आओगी, यस, और जरा डिस्टेंस बढ़ाओ, हाथ हल्का आगे ले लो, अनिता हाथ हल्का आगे, और आगे, जरा सा और आगे, और भले जरा सा स्लैंट लगे बॉडी, लेकिन हल्का सा हाथ आगे ले लो, आपका नी एंड हिप जो एक लाइन है उसको थोड़ा सा स्लैंट कर दो आगे की तरफ, यस, अभी जाए नहीं, अभी भी हिप ये नहीं जानी, हिप जो ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं ना, ये नहीं करना, स्पाइन सीधा रहेगा और आपको एल्बो फोल्ड करना है, स्पाइन आप क्या करते हो, हिप को पुश कर देते हो पहले से, तो शोल्डर पेन आएगा, क्योंकि पूरा वजन शोल्डर पे ही जाता है, हाँ कोई बात नहीं, चलो हो गया कंप्लीट, नॉर्मल ब्रीथिंग, 3 ब्रीथ नॉर्मल, वज्रासन, श्वास धीरे भरो, धीरे छोड़ो, 2 3
लास्ट ब्रीथ हाथों के, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करना है। दोनों हाथों की जैसे इंटरलॉक किया उंगलियां, हाथ को हल्का सा आगे लेके माउंटेन पोज जाना है। माउंटेन पोज से प्लांक आना है, लेकिन प्रॉपर प्लांक नहीं, आपकी थोड़ी मुट्ठी से आगे आ जाए उतना। लेग को हो सके इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, कोर को एंगेज रखना है, और हो सके इतना शोल्डर स्ट्रेंथ को यूज करके आपके अपर स्पाइन को उतना आगे खींचो कि आपकी थोड़ी आपकी मुट्ठी से आगे आ जाए, एंड बैक। ठीक, नॉन स्टॉप करना है। 10 10 10 3 राउंड करेंगे। 10 10 पे हम लोग ब्रेक लेंगे। चल, पोजिशन लें, पेट हल्का अंदर, हील प्रेस, हिप को छत की तरफ ऊपर स्ट्रेच करो। हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आपके हाथों पे नहीं जाएगा। शोल्डर की स्ट्रेंथ को यूज करो, एंड स्टार्ट। 1 बैक, 2 बैक, लो करो आगे, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक, 6 7 8 9 10 पे होल्ड। हल्का सा अपनी स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, लेग स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वज्रासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे भरो, धीरे छोड़ो, नेक शोल्डर ढीला, स्पाइन सीधा। 1 2 3 फिर से सेम पोस्चर। 10 राउंड का 2 राउंड और करो, खुद से करें। स्टार्ट। 1 बैक, 2 आगे ब्लो करो, बैक, गुड। 3 बैक, 4 एंगेज, 4 5 बैक, 6 बैक, 7 लेग स्ट्रॉन्ग, बैक, 8 बैक, 9 बैक, 10 पे होल्ड, पेट हल्का अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in वज्रासन, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, स्पाइन सीधा, नेक शोल्डर ढीला। 1 breathe out, 3 breathe normal, 2 breathe out, 3 breathe out, last round and last variation। योगा मैट पे अच्छे से आपका वेरिएशन को जितना मेंटेन करोगे, शोल्डर पे पेन कम आएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। स्टार्ट। सेम वेरिएशन, लास्ट एज। थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दो अनीता, ताकि प्लांक ना हो जाए। रहना माउंटेन में ही है, चाहे आपकी ठुड्डी को बाहर की तरफ खींचते हो तभी भी माउंटेन पोज ही रहोगे। स्टार्ट। 1 हल्का सा खाली स्पाइन को आगे खींच रहा है, हिप से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना। 2 बैक, परफेक्ट। 3 स्पाइन को लेंथ देते हुए आपको आगे जाना है। 4 आपकी हिप मूवमेंट के साथ नहीं जाना। 5 परफेक्ट। 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 बैक, लास्ट 10 and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and वज्रासन। श्वास धीरे भरो, धीरे छोड़ो। नॉर्मल श्वासों के साथ शोल्डर नेक ढीला। चलो, अभी वॉल का सपोर्ट चाहिए हमें। आप वॉल के आसपास आ जाओ। आपका योगा में प्लेन वॉल जो मेरे पास प्लेन नहीं है, बट लैपटॉप का वायर लंबा नहीं होता, तो मैं जैसे हूँ वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपका अगर प्लेन वॉल है तो उसके आसपास ही रहे, ताकि आपका पोस्चर खराब ना हो और कहीं पे भी लगने का चांस। ठीक, चलो। वॉल की सपोर्ट के साथ सबसे पहले हम सिंपल एल शेप बनाएंगे।
आपका हाथ वॉल की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। आप अच्छी से आपकी बैक को, हिप को वॉल्स के साथ चिपका दो। एंड हाथ ऊपर की तरफ, जहां पे आपका हाथ का फिंगर टच होता है वहां पे आपका हील टच होगा, जहां पे आपका हील खत्म होता है वहां पे आपका हथेली टच होगा। ये है आपका हाइट के हिसाब से आपका मेजरमेंट, कि जहां पे आपका हाथ की लंबाई खत्म होती है वहां पे आपका हील टच होगा, जहां पे आपका हील का लेंथ खत्म होता है वहां पे आपका पाम टच होगा। चले आ जाए। रूटीन रेगुलर जो प्रैक्टिस करनी है तो मार्कर से आप ना निशान भी कर सकते हो, कि आपको उससे इस निशान से ऊपर पैर नहीं लेना। ठीक, दोनों पैरों को जहां पे आपकी हाथ की फिंगर टच हुई वहां पे लगाना है। हो सकता है हाथ आपका नी बैंड रहे, लेकिन उस स्ट्रेंथ को यूज करके नी को स्ट्रेट करना है। हाथ को अच्छे से प्रेस करो एंड फिर यहाँ पे 20 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करो, कोर एंगेज एंड एल्बो स्ट्रेट। चल जर्ज होल्ड, गुड अनिता। 1 बने रहो। 2 3 अच्छे से हैमस्ट्रिंग मसल्स को छत की तरफ पुश करो। 4 5 6 7 8 9 10 11 perfect 30 40 50 60 70 80 90 20 आराम से नीचे आना। अर्चना आप बने रहो 10 सेकेंड और, बाद में गए। सेम वेरिएशन, अगला जो वेरिएशन है, सिंगल लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे और जो पैर वॉल पे है वो अंगूठे से टच होगा। अर्चना समझ रहे हो ना? वॉइस है ना क्लियर? ओके, ये हमने पहले किए हुए, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर कर देती हूँ। एक बार देख लो, फिर मैं आपका देखते हुए काउंट करूंगी। हम अच्छे से एल शेप करना चाहे तो जैसे आपने दोनों पैर लगाया तो आपका नी बैंड ही रहेगा, क्योंकि तभी आपका एल शेप होगा। अगर आप पहले से ही पैर सीधा कर दोगे तो कभी एल शेप नहीं होगा, तो आपका पैर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर सही एल शेप की तो हाथ नी बैंड रहेगा और उसको धीरे धीरे पुश करते हुए स्ट्रेट करना है। धीरे से आपके सिंगल लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। अगर आपको लगता है बैलेंस अच्छा है तो जो पैर वॉल पे है वो सिर्फ थंब पे ले लो, अंगूठे पे ले लो, धीरे से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। अगर लगता है दोनों पैर साथ में हो जाएगा, दोनों पैर साथ में बस स्टेप बाय स्टेप कर लो। नहीं तो लगता है कि एक बार नीचे जाके रेस्ट लेना है, फिर सेकेंड लेग उठाना। ठीक, समझ आया अनिता? आराम से जाना, लुढ़के बगैर, बैलेंस को खोना नहीं, ब्रेथ को नॉर्मल रखना, कोर को हल्का एंगेज रखना, और हो सके इतना लेग को स्ट्रॉन्ग रखो। हाथों की हथेली को जमीन पे अच्छे से प्रेस करो। एंजॉय। बस अर्चना, ऊपर नहीं जाना। और लेग को मेरी तरफ जैसे लिफ्ट किया अनीता, तो जो पैर वॉल पे है उसको जरा सा हील उठा के अंगूठे पे ले लो एंड होल्ड। 1 लेग लिफ्ट करो अर्चना। 2 सिंगल लेग उठाओ बाहर की तरफ। यस, अब वॉल पे जो पैर है उसको हील उठा के हल्का सा बैलेंस करो। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्लो डाउन। धीरे से नीचे आ जाओ अनीता, पहले फिर वापस जाना। कोर एंगेज करोगे तो अच्छे से आपका लेग स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपने कोर हल्का छोड़ा तो शिवरिंग होगा, फिर हाथों पे पैरों पे हल्का हल्का शिवर जैसा फील होगा, लेकिन कोर को एंगेज रखा है तो शिवरिंग कम होगा। वापस सेम पोस्चर में जाए वापस। अर्चना थोड़ा पैर नीचे चाहिए, एल शेप की जगह पे हल्का सा स्लांट हो जाता है, तो हल्का नी नीचे की तरफ, हील को प्रेस करो हल्का सा नीचे। आप आपका रेगुलर प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो मेजरमेंट कर लेना, एक लाइन बना देना मार्कर से। परफेक्ट, बस बस ऊपर नहीं जाना अभी। यस, एंड अपोजिट लेग लिफ्ट करो, हाथों को अच्छे से प्रेस करो। वॉल वाला जो पैर है हल्का सा हील अप करो। वेरी गुड अर्चना। 1 गुड अनीता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लो डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग, नेक शोल्डर ढीला। आप वज्रासन में रेस्ट करो बट आंखें खुली रखो। थर्ड पोजीशन, थर्ड वेरिएशन दिखाती हूँ मैं। इसमें से जहां पे भी कंफर्ट हो, अगर आप नॉर्मल एल शेप में भी होल्ड करते हो तभी भी हाथ की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती है, कोर स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती है। लेकिन अगर आप वेरिएशन में करते हो तो आपको जो शीर्षासन में वेरिएशन करते हो उसमें हिप ओपनिंग में वो हेल्प करता है, कि जितना भी आप बटरफ्लाई करो, लेग को स्प्रेड करो,
तो ये सारे वेरिएशन उसमें हेल्प करता है। लेकिन अगर आप सिंपल एल शेप में भी होल्ड करते हैं तभी भी आपका शीर्षासन तो इजीली होगा ही होगा। ठीक, थर्ड वेरिएशन जो है सेम पोस्चर, पहले एल शेप में जाना है हमें। जैसे हमने एल शेप को कंप्लीट किया, सीधे पैर को जमीन से टच किए बगैर नीचे लाना है, ये फिर से एल करना है। अपोजिट लेग को सीधा नीचे लाना है एंड ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो इस तरह से नॉन स्टॉप हमें 10 to 20 काउंट, जितनी हमारी हाथों की स्ट्रेंथ, जितनी हमारी कोर स्ट्रेंथ, हमें काउंटिंग करते हुए नीचे की तरफ आते जाना है, एल शेप में सीधा करना। समझ आया? तो जो पैर वॉल पे है वो हल्का सा नी से फोल्ड होगा, लेकिन जो पैर जमीन की तरफ आ रहा है वो नी स्ट्रेट होके पंजा फ्लेक्स रहेगा। ठीक, चलिए, चाहे 10 करो, चाहे 12, चाहे 14, चाहे 16, चाहे 20, लेकिन जितना करो अच्छा करना, कम करोगे चलेगा लेकिन घाई घाई में करके आधा अधूरा नहीं करना। चलिए क्वेश्चन ले। परफेक्ट, स्टार्ट। नहीं, सी फोल्ड 1, अर्चना स्ट्रेट लेग ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लेग नीचे आएगा, कंटिन्यू 1, वेरी गुड, अप, परफेक्ट, अपोजिट लेग 2, alternate, up, 3, very good, up, perfect, 4, at least 10, up, alternate, 5, up, good, 6, elbow straight रहेगा, हथेली को प्रेस किया हुआ रखना है, 7, good, up, perfect, 8, up, जितना होता है 4, 5, 6, 9, up, 10, अगर कैपेसिटी है तो 2-3 और करो अर्चना, नहीं तो फिर छोड़ सकते हो, 11, up, 12, up, good, 13, core engage and leg strong, up, 14, up, 15, up, 16, and relax, very good, perfect, वज्रासन, नेक शोल्डर ढीला, स्पाइन सीधा, धीरे श्वास भरो, धीरे छोड़ो। अभी जो अगला राउंड है अनिता, मैं आपको जो बोल रही थी कि आपको शीर्षासन में हेल्प करेगा, जिसको फियर है उसको फियर निकालने के लिए ये जो पोस्चर है बहुत ही हेल्प करता है। जैसे हमने एल शेप लिया था वही वाला हमें मेंटेन करना है पोजीशन, कि आपका जहाँ पे हील है वहां पे आपका एल्बो फोल्ड होके हाथों को इंटरलॉक करना है। तो शीर्षासन वाला जो पोस्चर है, आपका हाथ जो इंटरलॉक होगा आपकी हील की लाइन और आपका पैर जो ऊपर जाएगा आपकी फिंगर की लाइन, ठीक, जहाँ पे आपका हाथ का फिंगर या हाथ का लाइन खत्म होता है। तो सेम पोजीशन जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, शीर्षासन का पोस्चर अगर आपको पता है तो एल्बो शोल्डर एक लाइन, और आपने जिस तरह से अपोजिट एल्बो को पकड़ा तो आपका हाथ स्क्वायर चाहिए। तो जैसे आपने अपोजिट एल्बो को पकड़ा तो हाथ आपका आगे नीचे, आपका शोल्डर एंड एल्बो एक लाइन से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपने एल्बो को शोल्डर एंड रखा, ये हो गया सेकंड पोर्शन, और ये हो गया थर्ड पोर्शन। तो थर्ड पोर्शन में भी आपको बहुत ज्यादा एल्बो को वाइड नहीं करना, बहुत ज्यादा फैलावा नहीं देना, हल्का सा जो ए शेप होता है हमारा वही शेप को हमें मेंटेन करना है और हाथों को इंटरलॉक करना है। हाथ को जैसे इंटरलॉक किया तो अंगूठे को अलग रखना है, उसको एंटीना की तरह आपके क्राउन पे अच्छे से प्रेस करना है। आपकी फिंगर ज्यादा प्रेस नहीं करना, आपके अंगूठे को आपकी क्राउन पे प्रेस करना है, ठीक। और मुंडी रहेगी आपकी क्राउन वाला जो पार्ट है, आपका फॉरहेड नहीं रहेगा, आपका नेक वाला पार्ट नहीं रहेगा, आपका जो सेंटर का हिस्सा है वो आपकी लास्ट फिंगर के पीछे रहेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन। अभी सेकेंड पोजीशन हमें जहां पे हमने एल शेप में पैर को रखा था उसी जगह पे हमें पैर को फोल्ड करना है। तो ये हो गया आपका एल। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके नी को चेस्ट की तरफ टोस पॉइंट करके उठाना है। अब लगे आपका कोर हल्का एंगेज है तो जरा सा उस पैर को बॉल से हटाना है छोड़ना है, मतलब वहीं पे टच रखना है एंड छोड़ना है, टच रखना है छोड़ना है, समझ आ रहा है। जब लगे कि अच्छे से मेंटेन है तो दूसरे पैर को हटाना है, अगर लगे नहीं मेंटेन तो फिर जैसे आपने उस पैर को छोड़ा तो तुरंत दूसरे पैर को वॉल पे लेके जाना। तो यहीं पे थोड़ी मतलब थोड़ी देर खेलना है जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, तो वो अल्टरनेट लेग को आपको छोड़ना है लेना है, छोड़ना है लेना है। अर्चना आपसे तो शीर्षासन होता है,
तो आपको इस पोस्चर की जरूरत नहीं है, आप सीधा आसन पे ना वेरिएशन करो, बटरफ्लाई वाला, लेग ओपन वाला, एल शेप में सिंगल लेग वाला, ठीक है। और अनीता आप ये करो, समझ आया जितना भी समझाया। टी शर्ट को थोड़ा टक कर दो ताकि टी शर्ट आपको बार बार प्रेशर ना करे। आप कोशिश करो अर्चना की सिंगल लेग को पूरा शीर्षासन में स्ट्रेट रखो और एक लेग को एल शेप में ले आओ, सेंटर में 90 डिग्री पे ले आओ। पहले एक बार पोजीशन बना लो, कंट्रोल कर लो, फिर सिंगल लेग सीधा रखना और सिंगल लेग को एल शेप में लाना। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। धीरे 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 सीधा करो, कंट्रोल कंट्रोल, वेरी गुड, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अभी हल्का सा टेलबोन टक करो, कोर एंगेज करो एंड लेग को स्प्रेड करो, वेरी गुड, करो करो करो, वेरी गुड, करो। पंजा फ्लेक्स और ओपन, फ्लेक्स, यस, और ओपन और ओपन, गुड, कंट्रोल। सिंगल लेग फोल्ड रखो अर्चना बटरफ्लाई में और सिंगल लेग को ओपन करो तो और कंट्रोल बढ़ेगा। अनीता उठाओ, दोनों पैर वॉल पे रखो एल शेप में और पेट के ऊपर अच्छी से नी को दबाना है, चेस्ट की तरफ नी को अंदर की तरफ प्रेस करना है, टोज पॉइंट रखो। जितना टोज पॉइंट रखोगे लेग का वजन लाइट रहेगा, टोज जितना पॉइंट होगा लेग का वेट नहीं लगेगा आपको। होल्ड करो और जो पैर सीधा जाता है तुरंत आपके दूसरे पैर को आपके पेट के अंदर चिपका देना है और हर बार टोज पॉइंट रखना है। कोशिश करो हेड पे वजन कम जाए, शोल्डर ज्यादा स्ट्रेंथ लो। अर्चना आराम से, जर्किंग नहीं। वॉल पे लगा दो, वॉल वापस नहीं आना, दोनों पंजा वॉल पे लगा दो, पीछे लगा दो बट वापस नहीं आना। अनीता जब लगे थकावट आ रही है हेड पे या नेक पे तो शशांक आसन ले लेना, 3 to 5 भी। आज मुझसे हो ही नहीं रहा, वो कभी कभी या तो स्ट्रेस या तो एनर्जी कम होती है, कभी कभी अपनी माइंड ना लेट खाना खाया ना, तो लेट खाना खाया, हाँ वो भी वजह एक होता है ना, एनर्जी काम नहीं कर रही है, मतलब आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ। ड्रिल तो सारा ही सुपर किया है बट कई बार अंदर की जो एनर्जी होती है ना, बहुत बार होता है ऐसे कि नहीं होता है। लंबा गैप हो गया ना मेरा, तो इस वजह से भी नहीं लेकिन आपसे होता है वो मुझे पता है कि आप अच्छे से कंट्रोल करते हो। वेरिएशन भी कर लेती हूँ, पर आज ट्राइपॉड ट्राई करो क्योंकि ट्राइपॉड में जब जमीन पे अच्छे से तो हो जाएगा। ट्राइपॉड याद है ना पोस्चर ट्राइपॉड वाला? अनीता दूसरा पैर वॉल पे एकदम सीधा रहेगा आपका, मुझे लगता है दोनों पैर फोल्ड है क्योंकि अभी भी आप वॉल की तरफ हो ना, तो मुझे आपका पोस्चर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका बैक ही दिख रहा है, तो मैं आपको पकड़ नहीं पा रही हूँ। आपका दूसरा पैर सीधा होता है जब एक पैर पेट पे लेते हो रहा है, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है दोनों पैर फोल्ड है, मतलब वॉल के ऊपर सीधा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, होता है। वॉइस नहीं है तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। आपका वॉइस ओपन करो पहले, अनम्यूट करो फिर बोलो। अर्चना बकासन करो, 1 मिनट तक बकासन होल्ड करो और कुछ नहीं करो, बकासन के बाद तीनों पोस्चर हो जाएगा। अर्चना मेरी तरह बहुत बहुत बारीक हो गए हो। अभी आया आवाज? हाँ आया, बोलो। मैं क्या बोलती हूँ, जब भी हूँ एक पैर नीचे लाके फोल्ड करती हूँ ना, नी के बराबर यहाँ, तो दूसरा सीधा होता है। होता है, ओके। मुझे ऐसा लगा दोनों फोल्ड है तो नहीं। ओके फिर परफेक्ट हो, कंटिन्यू। जब आपने बोला ना तो दोनों पैर एक बार पेट पे दबा लो। हाँ दोनों, हाँ वही तो फियर है, वही तो फियर है, तो आगे एक गद्दा रख लो, एक बड़ा गद्दा रख लो, अगर गिरे तो वो गद्दे पे जाओगे। निकालने के लिए इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। गादी रख लो कि अगर गिरे तो वो गादी पे ही गिरोगे और कहीं नहीं जाओगे। अरे लेकिन बराबर गादी पे गिरू, लेकिन नेक पे कुछ हो गया तो दिवाली में गाँव जाना है। नेक पे कुछ नहीं होता क्योंकि गिरने का भी टेक्निक होता है कि हम ढीला छोड़ देते हैं हाथ को, तो ऑटोमेटिक हम अच्छे से ही आते हैं। मैं तो बहुत गिरी हूँ, मैं कभी गिरने वाला मेरा वीडियो सेंड करूंगी आपको। मैं भी बहुत गिरी हूँ, इसलिए तो डर लगता है अभी।
लेकिन टेक्निकली गिरते हैं, नेक को लॉक करके नहीं गिरते, नेक को ढीला छोड़ देती हूँ मैं तो। और मेरा हाथ भी ऐसा फैलता नहीं, मेरा हाथ भी ऐसे ही रहता है। अच्छा, फिर परफेक्ट है, बने रहो। अर्चना 1 मिनट कंटिन्यू होल्ड करो, हल्का सा फॉरवर्ड जाओ, लेग उठाओ, और फिर ऐसा है तो वॉल की तरफ चले जाओ। अगर आपको छोड़ने का मन हो तो पैर वॉल पे छोड़ देना। बकासन में ना अगर लगे कि नहीं कंट्रोल जा रहा है तो लेग को वॉल पे छोड़ना, लेकिन जमीन पे तो आना ही नहीं। यस, करो, लिफ्ट करो, लिफ्ट करो, लिफ्ट करो, लिफ्ट करो। यस, अभी जमीन पे नहीं आना। परफेक्ट, बने रहो। वो सपोर्ट नहीं कर रही है और कुछ नहीं है। आपका जो स्ट्रेंथ है ना कहीं और जगह पे यूज कर रहे हो आप, तो योगा मैट पे ना 100% नहीं आए हो। आज नहीं हो रहा मुझसे। हाँ नहीं, लेकिन आपका होता है तो वो कभी ना होता है, कभी कभी मेरा मेरा बैक बेंडिंग में ऐसे होता है, कभी कभी नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, कुछ भी कर लो ऐसे होता है। चले ट्राई करें। अनीता, क्या करें? ट्राइपॉड ये भी एक पोस्चर है अर्चना, जिसको आप जितना लॉन्ग होल्ड करोगे, समझ आ रहा है, सिर्फ आर्मपिट के बीचों बीच आपका नी चला जाएगा, और टोज पॉइंट करते हुए 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट इसी पोस्चर में बने रहो, तो शोल्डर की, नेक की और स्पाइन की तीनों स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ेगी। और आपको बता दूं, क्या करूं? जैसे हमने भी मेजरमेंट लिया था, ठीक है, तो जहाँ पे हाथ इंटरलॉक, आपको आई थिंक सो मेजरमेंट पता है, तभी भी एक बार तो सुन लो। ये दो पोस्चर सेम रहेगा, क्रॉस माइनस इंटरलॉक सेम है, लेकिन जहां पे आपने इंटरलॉक किया अपने हाथों को, वहां पे आपका क्राउन टच, ठीक, और जहां पे आपकी एल्बो टच है वहां पे आपका पाम टच होगा। वॉक करना है, अच्छे से वॉक करना है, लेग स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड धीरे नी सिर्फ आपके आर्म पिट पे लेना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सिंगल लेग लेने की मतलब सिंगल लेग ही कंप्लीटली ले सकते हो, तो सिंगल लेग को अच्छे से टोज पॉइंट रखते हुए नीचे की तरफ रखो। जब नीचे वाला पैर लोगे तो वापस से एक पैर को नीचे रखो। समझ आया? अगर लगता है कि नहीं कोर स्ट्रेंथ अच्छी है तो दोनों पैर ले लो, लेकिन इसमें आप वॉल की तरफ रहो, कि आपको अगर गिरने का डर भी है तो आप वॉल से चिपक जाओगे, नीचे नहीं आओगे। जैसे इसमें क्या होगा, तो अगर आप लुढ़के भी तो वॉल की तरफ जाओगे। मेरा प्लेन वॉल नहीं है ना, इसके लिए मैं जा नहीं पाती, लेकिन आपका वॉल प्लेन है तो आप पीछे जाओगे ज्यादा, तो उल्टे घूम जाओ चलेगा। अच्छा अनीता, अरे पापा, मेरे से होगा नहीं ये। ट्राइपॉड नहीं होगा, फिर बकासन करके आप प्रैक्टिस करो। बकासन की नौ, बकासन हो जाता है ना, हाँ, मतलब होल्ड इतना नहीं होता, होता है। बकासन में भी होल्ड करना है तो आप वॉल की तरफ जा सकते हो। जैसे आपने हिप को लिफ्ट किया, हिप को लिफ्ट किया, जस्ट आपका बॉडी फॉरवर्ड लिया आपने, तो सिंगल लेग को आप वॉल पे लगा दो, अपोजिट लेग को वॉल पे लगा दो, एंड आपकी पाम को स्प्रेड करके कोर एंगेज करो, एंड धीरे से आपकी सिंगल लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो, एंड अपोजिट लेग को भी लिफ्ट करो। जब लगे तो आप वॉल पे बार बार अप एंड डाउन कर सकते हो, वॉल की तरफ ही अप एंड डाउन करते रहो तो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन आज बहुत दुख रहा है। हाँ वो तुम कल से कर रहे हो ना, इसके लिए एक बार ट्राई कर, मैं लास्ट में करा देती हूँ, क्योंकि आज शीतल, सीमा, गीता कोई भी नहीं है, और आज अपना ये लास्ट सेशन है एडवांस का, फिर 2 प्राणायाम सेशन कराऊंगी फ्राइडे एंड सैटरडे। पहले नी स्ट्रेट
हो जाए उतना वॉक कर लो अंदर, ताकि आपका बैक स्ट्रेट हो जाए अनीता। क्राउन ही रखना, नेक को नहीं बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेना। परफेक्ट। वॉल की तरफ पंजा ले लो एक बार अर्चना, वॉल से पंजा। यस, हो गया। यस, पिंचा कर लो, हाथ का इंटरलॉक छोड़ दो एंड नेक लिफ्ट कर दो। परफेक्ट, गुड, बने रहो। सिंगल लेग को ना फोल्ड करो हेड की तरफ, नी से। अर्चना वापस आ गए। स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। संगीता तूने कितनी प्रैक्टिस की होगी? शीर्षासन की ज्यादा की है मैंने, क्योंकि शीर्षासन में मुझे भी आपकी तरह फियर बहुत था, तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे शीर्षासन में ही लगा है। अभी भी ट्राइपॉड करने में थोड़ा थोड़ा, बहुत टाइम अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ट्राइपॉड में मुझे भी फियर आता है, लेकिन शीर्षासन में काफी कितनी प्रैक्टिस की? 6 मंथ कंटिन्यू किया। बहुत प्रैक्टिस की। बहुत की। शीर्षासन अभी इजीली तो उठाती हूँ, मतलब बिल्कुल डर नहीं है, जरा भी वार्म अप की भी जरूरत नहीं है। शीर्षासन ऐसे उठाती हूँ कि वार्म अप ड्रिल कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ट्राइपॉड में मुझे अभी भी वार्म अप चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे। लेकिन कितना किया होगा? आपका भी होगा, क्योंकि हम सब साथ साथ में ही थे। फिर भी तू तो मेरे से यार आगे है बहुत। नहीं, लेकिन वो तो प्रैक्टिस आ गया और कुछ नहीं, बाकी नहीं, वही प्रैक्टिस की तो बात कर रही हूँ ना। हाँ, हम सब एक जैसे हैं। जब से हमने शुरुआत की थी ना, तो सब सिमिलर थे। सबका चक्रासन सेम हो रहा था, सबका सर्वांगासन सेम हो रहा था। लेकिन मेरा क्या हुआ, 2.5 साल लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं हुई, तो वो फर्क हाँ, है, और कुछ भी वो नहीं। हाँ, और अब ये लॉकडाउन में वो तो है। जब भी आसन को तमे आप मतलब दिल से प्यार करते हो ना, माइंड भी पूरा लगाते हो ना, तो अच्छे से होता है, हो जाता है। वो मेन है। जब भी शीर्षासन करो, एक स्ट्रेचिंग बताती हूँ, कंपलसरी वो स्ट्रेच करो ही करो, ठीक। हाँ, आजा। आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के राइट ईयर पे टच कर दो। स्पाइन बिल्कुल सीधा, शोल्डर एकदम हल्का। अभी आपकी जो राइट और लेफ्ट हैंड की उंगलियां है, उससे आपके हैंड को धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड करो। स्लो करना, स्लो करना, स्लो करना, जितना स्लो उतना अच्छा। आपका राइट शोल्डर बिल्कुल ढीला रहेगा। जिस साइड बेंड कर रहे हो वहां पे सिर्फ आपका नेक जाएगा, शोल्डर या स्पाइन नहीं जाएगा। पूरा स्ट्रेच फील करो अच्छे से। जब लगे कि अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, नेक कंफर्ट है, तब आपकी हथेली का तलवा आपके क्राउन के पीछे लगाओ। धीरे से वहीं से नेक डाउन, उतना डाउन करो जितना आपका नेक एंड स्पाइन अलाउ करे। नीचे की तरफ ठुड्डी को लॉक करने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे करना, बहुत घाई नहीं करोगे। नीचे अनीता, नीचे पीछे से पुश करते हुए नीचे की तरफ नेक लॉक करो। स्लोली फिर से सेंटर आ जाए। फिर से एक बार सेम पोजीशन में नेक को साइड पे दबाएं एंड धीरे से सेंटर। ये स्ट्रेच करने के टाइम आपको साइड पे नेक के पीछे कंपलसरी स्ट्रेच आना चाहिए, तो कहीं पे भी स्पाज्म आया भी है तो निकल जाता है। धीरे धीरे नेक को अपोजिट से बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो। आपकी फिंगर का हल्का सपोर्ट रखो कान के आसपास। अभी हथेली का तलवा लो पीछे की तरफ एंड नेक डाउन। नीचे की तरफ बहुत ही लाइट करो, बने रहो। फ्री ब्रीथ तक नेचुरल वहां पे सांस भरते रहो, छोड़ते रहो। धीरे से नेक सेंटर लेके फिर से एक बार साइड पे, स्लोली सेंटर। रिपीट करें एक बार। अच्छा स्ट्रेच शोल्डर, नेक एंड स्पाइन पे फ्री हो जाए उतना अच्छा स्ट्रेच होना चाहिए। शोल्डर को बिल्कुल भी नहीं खींचोगे। धीरे धीरे साइड बेंड करें, साइड बेंड करें, साइड बेंड करें। हथेली का तलवा यूज करो एंड क्राउन से नीचे की तरफ प्रेस करो। ये वाला स्टेज बहुत ही लाइट करना, जेंटल करना।
धीरे से सेंटर, फिर से एक बार साइड बेंड एंड रिलैक्स। अपोजिट साइड, स्ट्रेच करें अच्छे से। पीछे से प्रेस एंड नेक डाउन, धीरे से सेंटर, फिर से साइड बेंड एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने फॉरहेड पे हथेली रख लो। बिल्कुल भी आपका स्पाइन बैकवर्ड नहीं जाएगा, स्पाइन सीधा ही रहेगा, आपका शोल्डर ही एक लाइन रहेगा। जस्ट आपके नेक को पीछे की तरफ प्रेस करो, आर्च बैक नहीं करोगे, हल्का सा भी स्पाइन को अंदर की तरफ खड्डा नहीं करोगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ नेक उठाए, ठुड्डी को ऊपर उठाए एंड होल्ड। दोनों हाथ पीछे की तरफ क्राउन पे, बिल्कुल भी शोल्डर मूवमेंट नहीं होगा, जस्ट आपका नेक नीचे की तरफ बेंड करें, शोल्डर लाइट रहेगा, स्पाइन को बिल्कुल भी आर्च नहीं करोगी, शोल्डर को मांजर की तरफ बाहर की तरफ बेंड नहीं करोगी, सिर्फ नेक को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो एंड रिलैक्स। धीरे से नेक सेंटर, एक बार फॉरवर्ड बेंड कर लो, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ आपके अंगूठे पे। धीरे धीरे आपकी स्पाइन को लेंथ देते हुए टोज पॉइंट करो। टोज जितना पॉइंट करते हो उतना आपका स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रेच करेगा। जितना आपका स्पाइन टेलबोन से ओपन होगा, कहीं पे भी स्पाज्म में वो निकल जाएगा। दोनों पैरों को हिप से, हैमस्ट्रिंग से, नी कैप से, काफ से अच्छे से प्रेस करो एंड टोज पॉइंट करते हुए आपकी स्पाइन को सीधा आगे की तरफ स्ट्रेच करो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। एटलीस्ट 3 श्वास नॉर्मल भरो हर पोस्चर में एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधा, दोनों पैर वज्रासन में एंड लास्ट पोस्चर। आपके हिप एंड नी को एक लाइन रखते हुए हिप को पीछे पुश करो एंड धीरे धीरे आपकी चेस्ट को या ठुड्डी को जमीन पे टच करो। शोल्डर पे ओपनिंग फील करो अच्छे से, कहीं पे भी शोल्डर स्पाज्म में रिलैक्स हो जाएगा। आपकी हिप को पीछे पुश करो, हिप नी को एक लाइन रखो एंड चेस्ट को जमीन तक लेने की कोशिश करो। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। शवासन या शशांकासन, अगर आपके पास टाइम है शवासन जा सकते हो, वरना 3 बीच शशांकासन एंड रिलैक्स। तो ये था हर बार जब इन्वर्जन स्ट्रेच करते हो तो नेक स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच एंड स्पाइन स्ट्रेच कंपलसरी करो कि आप जब पश्चिमोत्तानासन करते हो तो हाथ को उठाना नहीं, लेकिन जितना टोस पॉइंट करके आगे जाते हो उतना स्पाइन को आगे खींचना है। और जब स्पाइन आगे खींचते हो तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को नीचे की तरफ अच्छे से प्रेस करना है, तो आपका स्पाइन का स्पाज्म दूर होगा। आप जब भूमि नमन करते हो तो आपका शोल्डर स्पाज्म दूर होगा। आप जब नेक स्ट्रेच करते हो तो आपका नेक का स्पाज्म दूर होगा। ठीक, तो हर बार जब भी आपने शोल्डर नेक पे काम किया है, ये तीनों स्ट्रेचिंग को कंपलसरी करो ही करो। ठीक है, मिलते फ्राइडे को। हाँ, और सैटरडे है प्राणायाम? सैटरडे प्राणायाम सेशन है, 2 सेशन जो प्राणायाम का है दोनों एडवांस है, तो स्किप मत करना। और अच्छा, सैटरडे लास्ट है? સેટરડે લાસ્ટ ફ્રાઈડે તો સ્કીપ કરેલો, એના માટે ક્લાસ છે. ફ્રાઈડે નો નહીં તો નથી, બટ ફ્રાઈડે ના હું પ્રાણાયામ સેશન આપવાની છું. ओके। इवन संडे भी अर्चना मॉर्निंग में वो अष्टांग का एक सेशन जो है कंप्लीट करती हूँ मैं, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यू हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो नए तरीके से न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या बोलती हूँ, टाइम सेम रहेगा ना? टाइमिंग सेम 5 to 6:15 फ्राइडे सैटरडे। संडे का मॉर्निंग रहेगा 9:30। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। बाय, थैंक यू।